Okay. Good evening, sir. Getting straight to the topic so that जब तक connectivity बना रहे सर हम सबका ये. Again, sir, as I said yesterday, all of us are big fan of you. So this is Fauji Talk, sir. This is a small YouTube podcast which we run, supported by Pranay. और आइडिया ये है कि सर यूथ को हम मोटिवेट करते हैं, बिकॉज मैं भी फौजी हूँ सर. सो दैट वाज द आइडिया कि जो रियल हीरोज है आप जैसे सर, उनको लोगों तक यूथ जो है वो मोटिवेट होते हैं सर. काफी लड़के लड़कियां मोटिवेट होते हैं. सो इसीलिए दिस वाज द आइडिया सर. एंड थैंक्स फॉर योर टाइम सर. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. If you are asking about my the childhood portion or a training portion, sir, so I will start with my training so that briefly we can touch upon and we don't overshoot the time. Correct sir. So I was in MSc Mathematics final year when I joined Short Service Commission through Officer Training School in 1976. Okay. So mine was the batch of platoon which was 1 month late to arrive because rest of the course had already started. Correct. And the name of the platoon is Kohima 18. Yes sir, Kohima 18. When we reached, so first of all, we received Ragda Patti from our batchmates only, but senior, that is Kohima 16. Okay. We did not know that they are our batchmate till we met first. Oh. Because anyone who used to come out, I had very short hair, crew cut type, no, like my correct now. So, oh, you Ganju, come here, start rolling. I did not know that this chap is my batchmate till the parade started. There I came to know, look, he is my batchmate and he's trying to bully me. Next time when he came, I told him that I'll give you a solid box. Do not try to come closer to me. So they asked me, do you know boxing? I said, no, I know martial arts. I've been trained in martial arts. So I was trained in karate. And that too by army. It happened that in 1972, the paratroopers from Agra had come to Mathura because prisoners of war, that is Pakistani prisoners of war, were stationed in or housed in Agra. Okay. So I used to see them, how they are fighting, how they are running, how they are boxing. So I being slightly drawn towards spirituality, I used to stay at temple, not at my home. Okay. So I asked them, what is this army? You whole day I see you running around, boxing, wrestling. They said, we are paratroopers, we are supposed to be elite group. But then I was that time in my intermediate, 12th standard. I then decided that I will join army. So when I was doing my MSc, then someone was filling up form. And he said, I asked him, bhai, what are you doing here? आप क्या कर रहे हो लाइब्रेरी में यहाँ पर बैठ के? तो वो उसने मुझको बताया कि मैं जो हूँ फौज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं भी इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ फौज को. अच्छा. कहने लगा तू तो पंडित है, तू तो ब्राह्मण है और तेरे मैथ में अच्छे नंबर आए, बिकॉज मैं मेरिट लिस्ट में था आगरा यूनिवर्सिटी में. तो तू क्या करेगा, तू यहाँ लेक्चरर बन जाना. आई गॉट नो स्लाइटली चीज ऑफ, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया. मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली से मैं शाहजहां रोड से फॉर्म लेके आया, फॉर्म भरा, पास हो गया. मैं पास हो गया, वो फेल हो गया. तो बाद में उसने भी फौज ज्वाइन करी. भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. अच्छा. तो वो अब इस दुनिया में नहीं है. वो मेरे से एक कोर्स बाद में ज्वाइन किए. हाँ सर. तो इस तरह से हम फौज में आ गए, मतलब ट्रेनिंग में आ गए. और विचित्र बात यह है कि हमारी प्लाटून जिसने 1 महीना लेट ज्वाइन करा था, उसमें से 4 जनरल बने. और बाकी प्लाटून्स में खाली एक ही मेजर जनरल था. अच्छा. तो ये सिद्ध करता है कि अगर आदमी के अंदर डेडिकेशन हो, लगन हो और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो कम समय में भी वो ज्यादा काम कर सकता है. सही बात है सर, एकदम.
मगर जो ट्रेनिंग फौज की दी जाती है वो आपको सिविलियन से फौजी बनाती है, देश के प्रति वफादारी सिखाती है, सम, मतलब किस तरह से आपको मानवता को प्यार करना चाहिए, मानवता का मूल्य सबसे ऊपर रखना चाहिए, ये वो बताती है। तो आपने 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 जब डिसाइड किया सर फौज ज्वाइन करना है, घर से कोई ऐसे विरोध या कुछ नहीं था कि नहीं जाना है फौज में, या आप पढ़ाई की ओर ध्यान दो मैथ्स में क्योंकि आप अव्वल दर्जे के थे, तो ऐसे घर से कोई ये नहीं था सर, ऑपोजिशन या कुछ? मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था अच्छा। और मैंने वैदिक मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत महारत हासिल करी हुई थी। स्वामी कृष्ण तीर्थ की किताबें पढ़ा करता था जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स पर लिखा हुआ है, काफी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वो पब्लिश, उनकी किताबें पढ़ा करता था। अगर मैं फौज में नहीं आता तो जरूर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना होता, किसी जगह कोचिंग सेंटर खोल लिया होता। मगर कमांडर विजय, ऐसा होता है जिंदगी में कभी कभी जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है। जो कहा है कि होई सोई जो राम रचि राखा, होता वही है जो भगवान ने आपके लिए रचा हुआ है। सही बात है सर। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं फौज में आ गया, क्योंकि नहीं तो मैं एमएससी को पूरा कंप्लीट करता अपनी को, और क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरी महारत थी तो 18 घंटे पढ़ा करते थे हम 24 में से, तो अच्छे नंबर आ जाते और कहीं भी लेक्चरशिप मिल जाती। सही बात। मगर एक चीज थी कि जो हमने फौजियों को देखा था कि वो टोटली डेडिकेटेड थे, उनमें अपने आप को सिद्ध करने की तमन्ना थी कि भाई हमसे बेहतर नहीं। और बाद में मैं उस यूनिट से उन लोगों से मिला, जब मैं फौज ज्वाइन करके पैराशूट रेजिमेंट में आया तो मैं उनसे भी मिला और फिर वो हंसे, क्योंकि वहां पर गोल्फ कोर्स में वो मंदिर था अभी भी मथुरा कैंट के अंदर, चामुंडा देवी का मंदिर। अच्छा उसके पास में से जमुना प्रवाहित होती है, उनका फ्लो है। तो वहां पर जो गोल्फ कोर्स का एनसीओ था, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो मुझको मिला वहां पर। कहता अयो साहब आप कैसे आ गया इधर? मैंने कहा यार गलती से पास करके आ गया। अरे इधर तो बहुत रगड़ा है, बहुत फटीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से फौज में ज्वाइन करा। ओटीए में, जब आप ओटीए में थे सर, आपके समय में 76 वगैरह में जब ओटीए में थे, तभी ट्रेनिंग 1 साल की होती थी सर कि 6 महीने की होती थी ओटीए में तभी? हाँ 9 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारी, शॉर्ट, अच्छा क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन था ना, तो शॉर्ट अच्छा। सर्विस कमीशन में तो 9 महीने की ही ट्रेनिंग होती है। तो हमारी तो 8 ही महीने की ट्रेनिंग थी, हम 1 महीना लेट ज्वाइन करे थे। मैं सिलेक्ट हुआ था नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। जितनी वैकेंसी ओके सर। पब्लिश करी गई थी बाद में वो वैकेंसी कम हो गई, तो अच्छा। उन शहीदों में जो कि मेरिट में नहीं आ पाए, मेरा भी नाम था। इसलिए मुझको उन्होंने ऑफर दिया कि भाई तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने कहा मरता क्या ना करता यार, तो फौज में आ गया। अगर आप नेवी ज्वाइन करते तो सर कहीं ना कहीं पक्का मुलाकात होती आपसे, एक क्योंकि वो एक हो जाती। नेवी में देखिए, नेवी मेरा इंटरव्यू हुआ था नेवी के लिए, रुड़की उन दिनों एसएसबी हुआ करता था, वो बाद में कैंसिल हो गया। बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू लेते हैं नेवी वाले, काफी टफ होता है एंड आईक्यू आपकी काफी टेस्ट करी जाती थी। मैंने जिंदगी में कभी भी वो पढ़ा नहीं, क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर कोई अटेंड नहीं करा था। मतलब रॉ रसलर who was invited to join the armed forces and मैं उसमें चला गया। वहां पे उनके वो मैथमेटिक्स की आपके वो स्टोरी राइटिंग वगैरह होती है, वो सारे कर दिए, मगर हमको तो फॉर्मेट तक नहीं मालूम था। वहीं पर बताया उन्होंने फॉर्मेट ऐसे लिखा जाता है। मगर हाँ, मैथमेटिक्स के जितने सवाल थे, जितनी सीरीज थी, वो फटाफट करके रिवाइज करके, इंग्लिश थी वो सब कर दी। और हमारा बैच 135 का था, उसमें से खाली अकेला मैं सिलेक्ट हुआ था उस बैच के अंदर। अच्छा। तो मुझे ये इतना मालूम था कि जो भी भगवान ने मेरे लिए लिखा है वो मुझको मिलेगा जरूर।
मैं ज्यादा भागा नहीं किसी, मतलब नौकरी के पीछे भागा नहीं, नौकरी अपने आप मेरे पास आ गई। देखिए, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका मेंटल प्रेजेंस होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो दे से इफ यू हैव गट्स वी हैव द प्लेस। आर्मी ये कहती है, मतलब आर्म फोर्सेस ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपके लिए हमारे पास जगह है। ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं जा सकता। सही बात है सर, खाली सही बात। हाँ, ये बात। तो सर जब ओटीए से आप पास आउट हुए, उसके बाद पहले से चॉइस था सर कि मैं जी हाँ, स्पेशल फोर्स? हाँ, वो वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। पैराशूट रेजिमेंट में अकेले को आदमी को पूरे कोर्स में पैराशूट रेजिमेंट मिली, ओह, क्योंकि वहाँ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कंपटीशन वगैरह होता था, बॉक्सिंग वगैरह होती थी, सब अच्छा काम करे हैं। और जो रन होता था 14 किलोमीटर, वो भी बहुत बढ़िया करे। तो उन्होंने कहा इस गधे को पैराशूट रेजिमेंट में भेज देते हैं, तो गधा पैराशूट रेजिमेंट में चला गया। गधे को पता नहीं था कि लाल टोपी पहन के नहीं जाना, जो पैरा की मैरून टोपी होती है उसे पहन के नहीं जाना। तो ये सुनील नाम का गधा जो है पहले से ही लाल टोपी लगा के चला गया। उन दिनों पैरा सेंटर में रिपोर्ट होती थी, कैप्टन कुंजरू, एसएम कुंजरू, वो एडजुटेंट से पैरा सेंटर को हमने गए, सलूट मारा और उनको रिपोर्ट कर दिया आफ्टर द ब्रेक। She had a fantastic sense of humor. उनको जबरदस्त व्यंग करने की आदत थी। वो खड़े हो गए, उन्होंने अपने दोनों हाथ तान लिए, मुझको कहते हैं कि सर आप आ गए। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार यहाँ तो एक चीटा लगा है कंधे के ऊपर, सेकंड लेफ्टिनेंट टू, ये मुझको सर क्यों बोल रहे हैं। हम वो सक पका गए और उनकी तरफ अचरज से देखने लगे। तो फिर वो अपनी उस पर फौजी लैंग्वेज पे आ गए, कहने लगा बास्टर्ड, go and put that jungle cap. I don't want to see your fucking face. तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुम जो है जंगल कैप लगा के आओ, और ये जो तुमने ये ड्रेस पहन रखी है एचडी वाली, इसे उधर छोड़ा था, डांगरी पहन के आओ वहां से। डांगरी मिली है? मैंने कहा मिली है जी। हम भाग के गए, डांगरी पहन के आए, मगर हम जंगल कैप कहाँ से लाते? तो फिर एक जवान ने, वहां पर जो रनर होते हैं, उसने हमें मदद करी, उन्होंने कहा साहब ये मेरी बारी ले लो, आप ये पहन लो। तो हम पहन लिए। उसके बाद मतलब हमको ये पता नहीं दिन हो रहा है कि रात हो रही। 3 महीने दबा के रगड़ा खाया, और आखिर में हमारे यहाँ 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च होता है। वो जून के महीने में था, 2 बजे की दोपहर को। तो हम अपना बड़ा पिट्ठू पिट्ठू लगा के चले गए। उन दोनों को स्पंज वगैरह लगाने की आदत नहीं थी, एकेडमी में भी कभी स्पंज नहीं लगाया था। शोल्डर स्पंज जो होते हैं, कुशन पैड, वो नहीं लगाए थे। तो हम पहुंच गए वहां पर, मगर एकेडमी में कभी भी हमने 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च नहीं किया था। जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आ गए? मैंने कहा हाँ सर मैं आ गया। कहने लगा अच्छा सामान अपना वाला पिट्ठू यहाँ रखो, और ये लो पिट्ठू हम आपको देते हैं। उस पिट्ठू में हमने देखा कि 17 किलो का सीमेंट का पपलू था, हाथ में एसएलआर राइफल, 1 लीटर पानी, और हमें बता दिया गया कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर करना है आपको, और 40 किलोमीटर आपके साथ गाड़ी जा रही है, पीछे वो एक एमआई रूम, मोबाइल एमआई रूम वाली बंटन है, वो है, तो आप दौड़ लगा दीजिए यहाँ से। तो वहां पर एक एपीटीसी के उस्ताद थे, उनको मुझ पर दया आ गई। उन्होंने थोड़ा सा ग्लूकोज का पानी हमें बोला कि साहब कुल्ला करो, पी लेता है। तो हम पानी पी लिए थोड़ा सा, और फिर चले। साथ में एक साइकिल पे एपीटीसी का एक और हवलदार था, वो फॉर मेंटेनिंग द पेस, मतलब आपकी दौड़ जो है उस हिसाब से चलनी चाहिए। अब जब दौड़ना शुरू हुए तो 5 किलोमीटर तक तो चले गए। फिर ये जो पट्टे होते हैं पिट्ठू के स्ट्रैप्स, वो चुभना शुरू हुए। तो अब क्या करते हम? तो गांगरी को थोड़ा मोड़ा, नीचे लगाया, मगर उससे काम नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद हमको ऐसा लगा कि जैसे कोई पानी सा अंदर गिरा है, पसीना तो आ ही रहा था। तो देखा खून निकलना शुरू हो गया।
फिर वहां पर हमने जो साधना करी थी बचपन में, मैं 7 साल की उम्र से मैं मंदिर पे रहा करता था, वो काम आ गई। मैंने अपने दिमाग को, अपनी बर्दाश्त करने की क्षमता को अपने शरीर से अलग कर दिया। ओह, एंड देन आई डिसाइडेड, ओके सिंस यू आर टेस्टिंग मी, आई एम रेडी। और दौड़ना शुरू कर दिया लंबे लंबे पैर से। तो 3.5 घंटे में के लगभग हमने वो खत्म कर दिया पूरा, दौड़ के 40 किलोमीटर। जब वापस आए तो देखा हड्डी के ऊपर वो टिका हुआ था पट्टा। ओह, डॉक्टर साहब एकदम घबरा गए, एकदम स्टिचिंग और वो जाके एडजुटेंट से कानाफूसी होनी शुरू हो गई। हमको 2 दिन का रेस्ट दिया, स्टिचेस लगे, मतलब टांके लगे हमारे। और फिर उसके बाद हमसे पूछा गया, तुम बीमार, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? हमने कहा नहीं है सर। ये एक चीज लोग भूल जाते हैं, फौज में बहुत लोग जाना चाहते हैं, मगर फौज में वही जा सकता है जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता, क्षमता हो सर। जिसमें काबिलियत है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो तुम प्रेम खिलंदा चाहो, सिर तल तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पे पैर धरीजे, शीश दीजे काम न कीजिए। इसका मतलब है कि अगर तुमको देश से प्रेम है तो अपना शीश देने में देर मत करना। वहां से शुरुआत होती है। बहुत सही बात है सर। तो फिर वहां पर उन्होंने ज्यादा फिजिकल का टेस्ट उसके बाद हमसे लिया नहीं, तो सारी चीजें हम भूल जाते थे। हिरन की बॉडी बहुत फिट थी, सप्पल थी, और 40 साल की उम्र तक बॉडी बहुत सप्पल रही। समरसॉल्टिंग ये, और पानी के अंदर सांस रोक के रहना 3.5 मिनट 4 मिनट तक, वो सारी लंग पावर कैसे बढ़ाते हैं, हाथों की ग्रिप कैसे और मजबूत करते हैं, वो सब हमको सिखाया गया। और साथ में एक चीज और सिखाई, जो हमारी माता जी ने सिखाई थी। वो कहती थी हमको कि आप सभी चीज का कर्जा उतार सकते हो, मगर इस जमीन का कर्जा अगर मौका मिले तो उतारते हो, क्योंकि इस पे आप चलते हो, थूकते हो, सारा काम करते हो, मगर इस जमीन की रक्षा जरूर करना। इसीलिए हमारे घर में ट्रेडिशन है, हमारे राजदान परिवार के अंदर ट्रेडिशन है कि परिवार में से एक बच्चा जरूर फौज में जाता है। मैं 3rd जनरेशन अफसर हूँ, हाँ सर। मेरा बेटा 4th जनरेशन अफसर। अच्छा सर, अच्छा। हाँ। वो पैरा उसमें एसएफ में है। तो सो आपने जब पैरा ट्रूपर यूनिट में गए, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का कब ध्येय हुआ सर कि मुझे स्पेशल फोर्सेस ही जाना है? ऐसे काफी यंगस्टर्स को होता है, तो सेवन पैरा ही क्यों चुने? नहीं, मैं उस समय ये पैराशूट 7 पैरा जो थी, नॉर्मल एयरबोर्न पैरा, अभी भी एयरबोर्न ही, मगर वो एसएफ नहीं थे। एसएफ तो अब बनी है। अच्छा, हाँ, अब बनी है सर। एसएफ तो अब बनी है, मैं नॉर्मल पैराशूट में था। और इसके बारे में मैं आगे चल के इंटरव्यू में अगर मौका मिला तो बताऊंगा मेरी मैथमेटिक्स कैसे काम आई। उसके लिए एयरबोर्न ऑपरेशन सुनाई दिया है अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि आप जो पैरा के, जब पैरा में है, बहुत सारे अफसर, बहुत सारे जो जवान हैं, उनके काफी सारे कारनामे सुनने मिलते हैं। तो एक अफसर था कर्नल जेकब सर, विवेक जेकब के जो फादर हैं, वो और आप करीबी से काम कर चुके थे एक साथ में। तो उनका और आपका कोई एक इंसिडेंट था वल्चर वाला, वो मैंने सुना था कहीं। तो सर, तो उस पर कुछ बताएंगे सर? अगर आप पूछ रहे हैं कि पैरा में कोई और अफसर को आप का संपर्क है या जानते हैं, तो मैं किसी को नहीं जानता था। शुरू में मैं किसी को नहीं जानता था। मैंने आपको बताया कि मैं प्योर देसी आदमी था, और इसकी वजह से जो मैंने जो भी सीखा है पैरा रेजिमेंट में, वो उन सीनियर्स की बदौलत है जिन्होंने मुझे सिखाया। हमारे एक सीनियर हैं मेजर जनरल दौलता, उनको सॉल्टी दौलता दौलता बोलते हैं, अच्छा। एवीएशन बीएसएम। वो मेरे सीनियर थे, सब सीनियर सबल्टन थे। उनके
उनसे सीनियर थे KJ अस्पराल, और मेरे सीनियर इमीडिएट सीनियर थे ब्रिगेडियर कौशिक, अब ब्रिगेडियर होकर रिटायर हो गए वो। इन लोगों ने न केवल फिजिकल में हमको सिखाया, बल्कि स्टाफ वर्क कैसे करते हैं। मैं 5 साल IO और क्वार्टर मास्टर की कंबाइंड ड्यूटी करी है, तो उसके दौरान एक्सरसाइजेस के दौरान अपनी को कैसे मेंटली फिट रखना चाहिए और काम करना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। ये बहुत जरूरी चीज है इंसान के लिए। और मेरा आखिर तक कोई माई बाप नहीं था, क्योंकि तो शुरू से ही आदत थी कि अपने अपने के अंदर थोड़ा कन्फाइन रहना, मजाक वजाक सबसे करते थे, मगर किसी के बारे में प्रोब नहीं करते थे। ये कमी थी, और हमको जैसे सीनियर हमारे बताते थे वैसे पढ़ा करते थे। ये तो आपके सर्विस डे में सर, जब आप पैरा में थे, कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो बताना चाहेंगे हमसे सर? एक इंसिडेंट माउंटेनियरिंग के अंदर हुआ था 1978 में। मैं अपने सीनियर्स के साथ एक्सपेडिशन किन्नर कैलाश के लिए गया था। उसके लीडर थे मेजर KI कुमार, गॉड ब्लेस हिज सोल। ही लेड हिज लाइफ ऑन कंचनजंगा एक्सपेडिशन। तो हम बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप सेटअप करने जा रहे थे, तो एक और कैप्टन थे वहां मेरे साथ जो एयरफोर्स से आर्मी में आए थे, कैप्टन लखा सिंह 4 पैरा। ही इज आल्सो नो मोर, ही आल्सो लेड हिज लाइफ ऑन कंचनजंगा। तो उन्होंने मुझको कहा कि यार एडवांस बेस कैंप सेटअप करना है, तुम आगे लगो। तो वहां एडवांस बेस कैंप जाके सेटअप कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि एक स्नो ब्लिजर्ड आ गया, समिट पार्टी गई हुई थी ऊपर, स्नो ब्लिजर्ड आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्नो जो था उनके टेंट के ऊपर आ गया और वो बरी से हो गए। तो समहाउ NPRC का एंटीना बाहर था, और उन्होंने मैसेज बेस कैंप के पास रिले करा कि भाई हमको मदद चाहिए, क्योंकि ब्लिजर्ड था। तो एडवांस बेस कैंप के जो OC थे, ऑफिसर इंचार्ज जो थे OIC, तो उन्होंने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर इस तरह से हो गया है, आप बड़ी मेहरबानी परमिशन दें जाने की, उनको निकाल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ही वाज राइट कि भाई वाई शुड, कि ऐसे ब्लिजर्ड में मैं और क्यों लाइफ को रिस्क करूं, मैं यहाँ पर कमांडर हूं। तो हम थोड़ा गुस्से वाले आदमी, थोड़ा गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। उसने बोला नहीं जाएगा, हमने कहा मैं जाऊंगा। फिर मैं और मेरा बड़ी 10 पैरा कमांडो का रोहतास सिंह, मैंने रोहतास को बोला कि यार ऑमलेट बना, अपने पास वो एग है, तो उसे ऑमलेट बनाया, उसको लोड करा, पराठे बनाए, उनको लोड करा, बियरिंग पकड़ी कंपास से। मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं रिवर्स बियरिंग कैलकुलेट करना बड़ा आसान था, फॉरवर्ड बियरिंग तो हमने ली हुई थी। बियरिंग कैलकुलेट करके स्टेप्स काउंट करके उधर पहुंच गए। थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते थे, हम करेक्ट कर देते थे, और उनको बाहर निकाल दिया। ऊपर पहुंच के उनको जूसेस वगैरह दे दिया, तो वो थोड़ा ठीक हो गए उससे। और बाद में फिर ये बात थोड़ी मतलब पसंद नहीं आई OC को, तो हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने की कोशिश करी। तो फिर बाद में जो हमारे माउंटेनियरिंग के लीडर थे, उन्होंने बात को रफा दफा करवा दिया, कहना कोई बात नहीं यार, इसने काम कराया इस लड़के ने। तो हमको उस एक्सपेडिशन के लिए कमेंडेशन कार्ड मिला था GOC का, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके लिए कि ये काम। फिर एक इंसिडेंट और हुआ था कि हम जब वहां पहुंचे यूनिट में, तो जो OTS है वहां से इतनी अच्छी हमारी शूटिंग नहीं, कभी जिंदगी में तो शूटिंग करी नहीं थी राइफल, तो सेटिस्फैक्टरी टाइप फायरर थे। तो हमारे सीनियर बराड़ सर ने पूछा भाई तुम्हारी फायरिंग का क्या स्टेट है? तो हमने कहा सर सेटिस्फैक्टरी है। कहने लगा यहाँ तो एक गोली एक दुश्मन है, पैराशूट रेजिमेंट है ये। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। तो हमको 1100 राउंड देते थे गेंद के, और हमको बोल दिया कि भाई जाकर तुम रेंज पे अपने आप अपने टारगेट को चेक करो, अपने आप ठीक करो, और
ऐसे करके फिर हम जो है एक स्टेज आ गई, मार्क्समैनशिप में आ गए। और फिर हमने रेजिमेंटल टीम की ओर तरफ से आर्मी राइफल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करा, और हमारी टीम जो थी वो चैटवुड कप जीत के लाई थी 1977। 1977 सर। अच्छा। तो ये है, इस तरह से लोग ट्रेनिंग देते हैं आपको। उनका बस चले तो वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह से रजनीकांत जो है आधी गोली से, एक गोली से 2 दुश्मन मार देता है ब्लेड फेंक कर, उसी तरह से वो भी आधी गोली से एक दुश्मन 600 गज से, उन दिनों गज हुआ करते थे, मीटर नहीं होते थे। 600 गज से SLR से तरबूजे को फाड़ देते थे बिल्कुल, और कोई ऑप्टिकल डिवाइस नहीं थी, अपनी नजर के देख के उसको उड़ाना। ये ट्रेनिंग, यहाँ तक की ट्रेनिंग थी हमें। कर्नल जेकब के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? कर्नल जेकब आपके जो सीनियर थे। हाँ, कर्नल जैकब सर तो रैन पैरा कमांडो के, वो विवेक जैकब के फादर, हाँ, विवेक जैकब के फादर। मैंने विवेक अच्छा उनके दोस्त बेटे है के सर। साथ भी स्कूबा डाइविंग करी है। हाँ सर। वो उन्होंने, मैं पिस्टल की शूटिंग उन दिनों शौक में उठाई थी, तो रेजिमेंटल कंपटीशन में वो आए थे। तो उन्होंने बोला उधर खड़ा हो जाए रूम के दीवार के साथ, मैं बताता हूँ फायरिंग कैसे होती है। He fired 13 bullets and made a silhouette of me. उसके साथ साथ पूरी उन्होंने 13। तो फिर हमने भगवान को शुक्र करा कि बच गए भाई, इतनी पास से मार रहा है। तो फिर उन्होंने कहा बगर गधे, तू एक गोली मेरे पे फायर करके दे। हमने पिस्टल कभी फायर नहीं करी थी, हम हीरो लाल थे। तो हमने फायर करा एक सिलेक्ट बनाने के लिए, वो टांग में जाकर उनके लगी, फिर वो ठीक ठाक, मतलब खरोच स्क्रैच मारती हुई चली गई। तो अपने वो बात को रफा दफा कर दिया गया, वहां पर ठीक ठाक हो गई। मगर फिर उसके बाद हम पिस्टल शूटिंग में भी काफी अच्छा हमारा स्कोर आने लग गया। हमने 586 तक आउट ऑफ 600 स्कोर करा है। वो तो काफी काफी अच्छा स्कोर है सर, मतलब। हाँ, थोड़ा ठीक ठाक है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जो ओलंपिक लेवल है वहां पर नहीं था। और वो भी बरेटा से फायर करा, कोई .22 तो थी नहीं, ना कोई एयर पिस्टल थी। तो ये तो कॉम्बैट शूटिंग अलग होती है और ये वाली शूटिंग अलग होती है, दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। और आदमी को अगर निशाना लेना आता, तो बचपन में अंटे बहुत खेले थे, तो कंचे खेलने से निशाना ठीक हो जाता है। सही बात है सर। सो आपकी आपकी मेजर पोस्टिंग कश्मीर में थी सर? मेजर पोस्टिंग जो भी थी। फर्स्ट पोस्टिंग, हाँ सर। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई थी लेह में। अच्छा, ओके। लेह में क्यूमथांग करके जगह है, वहां पर यूनिट थी, उसके साथ मेरी पोस्टिंग थी। हमारे सीओ साहब थे कर्नल जाल मास्टर साहिब, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। और यूनिट को उन्होंने इतना बढ़िया ट्रेन करा था कि हमने ब्रिगेड के अंदर ब्रिगेड की चैंपियनशिप जीती थी। रोज सुबह होके इंस्टेड ऑफ पीटी वी हैव टू गो अप द माउंटेन रनिंग। एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, उस पहाड़ी को बोलते थे घुंडी परेड। उधर दौड़ते थे, वहीं आरामो साहब बैठते थे, कहते थे कि भाई मैं अपना टेबल यहीं पे बिछाऊंगा, जो बीमार है वो इधर आ जाए। सिक रिपोर्ट देखते हैं ना, तो सिक रिपोर्ट जो है मैं घुंडी पे देता हूँ। जो ऊपर आ जाते थे उसको कहते थे तुम तो यार पहाड़ी चढ़ा के आएगा, तू बीमार का भाग जाएगा। बाकी कोई आता नहीं था। लोग अपने आप ही अपना इलाज कर लेते थे। तो आपकी और पोस्टिंग कश्मीर में भी रही है ना सर? कश्मीर में भी बहुत पोस्टिंग रही है ना सर आपकी? जी, कश्मीर में मेरी पोस्टिंग, J&K में मेरी पोस्टिंग 89 में हुई। मैंने स्टाफ कॉलेज करके आया था, तो वो उन्होंने वो पूछा मुझसे कि भाई तुम ब्रिगेड में जाना पसंद करोगे कि नहीं। तो हमने कहा भाई हम यूनिट चले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यूनिट जो है कॉम्बैट एरिया में है, उस एरिया में CI ऑफिस एरिया में, ऑपरेशक में, तो हम पहले यूनिट जाना पसंद करेंगे, स्टाफ बाद में होता रहेगा। हमको लगता था स्टाफ बाबूगिरी है। पूरी जिंदगी फील्ड में काम करा तो फिर जमीन से लोगों से प्यार हो जाता है, आपको टेबल से प्यार नहीं होता। तो फिर हम
89 में जब हमारा स्टाफ कॉलेज कंप्लीट हुआ तो 89 में हमने जम्मू उसमें बड़ी ब्राह्मणा में इसको ज्वाइन करा यूनिट को। और क्योंकि उस समय मेजर थे हम, तो हमें उन्होंने एक फॉरवर्ड पोस्ट दे दी अकेली, इंडिपेंडेंट, उसको कहते हैं परमवीर चक्र पोस्ट। अच्छा। हाँ, तो वहां पर जाकर हमने कमांडर भी करी, काफी ठीक ठाक हो गए। वहां पर एक हमको फायदा मिला कि 2 नदियों का संगम था वहाँ। मैं ज्यादा उसकी डिटेल आपको बताऊंगा नहीं। मैं उस संगम पर पूजा किया करता था, क्योंकि जो बचपन में सीखा उस नित्य कर्म को छोड़ना ठीक नहीं। तो वहां पूजा करा करता था। तो वहां पर एक दिन सपना देखा, तो उसमें जैसे मुझे कोई बुला रहा है कि आप, एक अर्जुन सर करके जगह है, आप वहां पर, मतलब एक तालाब है काफी बड़ा, आप वहां पर पहुंचो, आपको गुरुजी मिलेंगे दीक्षा के लिए। तो कमांडिंग अफसर साहिब से परमिशन लेके और अगेन ऑन मैप, नॉट बाई रोड, पैदल पैदल पहुंच गए। और शाम को, मतलब तीसरे दिन शाम को वहां पर पहुंच गए थे। और वहां नीचे उतर के आए, वहां बीएसएफ की लोकेशन थी साथ में, बहुत बड़ी 1 मील लंबी झील है, और वहां पे लोग पितरों का श्राद्ध वगैरह करते हैं। नीचे आए, मैंने जवानों को बोला कि भाई आप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में घुस जाओ, मैं झील में नहा के और अभी आता हूँ। फिर मैं झील में नहाने चला गया, पूजा पाठ कर, आप पीछे मुड़ा, देखा मंदिर है, तो मैं मंदिर चला गया सीधा। और वहां पे जाके अभी मैंने माथा ही टेका था कि पुजारी बाहर निकल के आया, और पुजारी को मैंने नमस्कार करा और मैंने बोला मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। तो वो उन्होंने बोला अच्छा तुम ही हो। मैंने कहा क्या मतलब है तुम ही हो? मतलब मनी मनी सोचा, मैंने कहा ये क्यों कह रहा कि तुम ही हो? कहने लगे कि वो 2 दिन पहले मैं कसौली में था, मुझे सपना आया कि आपको गुरु दीक्षा देने के लिए फलानी जगह जाना। तो फिर मैंने कहा हो सकता है मैं ही। तो उन्होंने कहा मगर आप फौजी हो। मैंने कहा कोई बात नहीं आप दे दो। तो फिर उन्होंने हमें गुरु दीक्षा दी, और फिर वो चले गए वहां से, और उन्होंने कहा कि हम अब नहीं मिलेंगे। तो पूरी जिंदगी अध्यात्म की तरफ थोड़ा फौज के साथ साथ लगे रहे। अच्छा सर, तो आपकी जब पोस्टिंग कश्मीर में थी सर, वहां का माहौल तभी तो बहुत बुरा होगा ना सर, आज से तो काफी। जी जी, मैं समझ गया। देखिए, उस समय मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ये हम लोगों की गलती थी, जो राजनेता थे उनकी गलती थी। वहां के लोग अच्छे हैं, मगर बंदूक के आगे बेचारे बोल नहीं पाते। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पहले ये, उस समय एसिमेट्रिक वॉरफेयर के नाम से इसको शुरू करा था, कि उसने मिलिटेंट भेजने शुरू कर दिए थे। तो मिलिटेंट ने अपना फ्री जोन सा बना दिया था कई जगह पे, जिसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वहां हो गई थी। फिर फंडामेंटलिज्म साथ में चालू हो गया, फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन और तरह तरह के अत्याचार शुरू हो गए। फौज को उससे कोई लेना देना नहीं, जब तक हमको आदेश नहीं मिलता हम कोई कार्रवाई नहीं करते, अपनी तरफ से कोई नहीं कार्रवाई की जाती। क्योंकि ये काम लॉ एंड ऑर्डर का था उस समय, तो लॉ एंड ऑर्डर जब हमको आदेश करा तो हमने काम शुरू कर दिया। और कश्मीर में ये 7 अक्टूबर की बात है 1994 की, 1994 की। 94 की सर। हमको एक विशेष परमिशन दी थी हमारे अधिकारियों ने कि आप सिविल कपड़े पहन सकते हैं खबर लेने के लिए। तो एक काजीगुंड करके जगह, वहां हम बैठे हुए थे चाय की दुकान पर, अपनी चाय छोड़ा कराए थे, चाय पी रहे थे। तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला आया, क्योंकि हम इस्लामिक स्टडीज में प्रॉपरली ट्रेंड हैं। तो और वहां पर हमारा नाम था असलम शेर खान। तो आया, कहने लगा जनाब असलम साहब, मेरे साथ इस तरह से वाकया हो गया कि मेरे बेटी को मिलिटेंट अगवा करके ले गए हैं यहाँ से, मतलब मेरा जो घर है वहां से, और उसके साथ 13 और औरतों को ले गए। तो पिछले 1 हफ्ते से बच्ची की बड़ी जलालत में पड़ी है वहां पर, बहुत ही, मतलब उसका यौन शोषण हो रहा है, तो आप कृपा करके मदद करें। तो हमने सड़क पार करके अपने कमांडर के पास गए, हमने उनको कहा कि सर इस तरह की इंफॉर्मेशन है, आप अगर परमिशन देते हैं तो
हम चले गए। तो उन्होंने हमको परमिशन दे दी। हमने जाके सीओ साहब को बता दिया अपने को, हम तो ऐसी थे। तो सीओ साहब ने बोल दिया, जब कमांडर ने कहा तो जाओ। तो हम अपने वो दूसरा दिन 8 अक्टूबर हमारा बर्थडे और नवरात्र था, तो हम फास्टिंग में भी थे। तो वहां सुबह चल के सुबह 6 बजे स्टार्ट करके हम शाम को 7 बजे उस जगह पहुंचे जहां पर कि आतंकवादियों ने, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने जहां से लड़कियों को उठाया। अब पूरा दिन के चले हुए रात शाम को पहुंचे वहां पर, तो लोग थक गए, अफसर थे, जैसे थे। और तो हमने उनको बोला, भाई खिचड़ी बना लो यहाँ पर, तब तक खा लेते हैं, नहीं रात को यहीं पर सो जाएंगे, कल सुबह देखें। मगर फिर मन ने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौज में चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जैसे नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करती है, आर्मी वाले भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। तो मन में कहा कि यार ये मानवता का काम है, जितनी जल्दी उस लड़की को छुड़ा सको उसको छुड़ा। तो ये सोच के हम अपनी जगह से उठे, थके हुए थे पूरे 13 घंटे चलना बहुत बड़ी बात है। और गांव का चक्कर लगाया, मेरे साथ दो लड़के थे, 2 जवान और थे। तो गया वहां पर, देखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वहां पर एक शफर्ड जो था वो भेड़े लेकर आ रहा था। हमने उसका स्पॉट इंट्रोगेशन करा। हमको लोकल भाषा आती थी, वहां पर कश्मीरी होने की वजह से वो कश्मीरी भाषा आती थी। तो हमने उससे पूछा, भाई यहाँ पे मिलिटेंट है वो कहाँ है? तो उसने बता दिया हमको, भाई ऊपर, जगह लोकेशन बता दी। वो 1.5 घंटा चढ़ाई थी आगे। तो मैं मुड़ के अपने ग्रुप्स के पास गया, तो मैंने उनको पूछा, भाई इस तरह से खबर मिली है, आप हमको बता दो। मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उस समय खड़ा हुआ था, वहां से मैं वापस आकर पूछा। तो जवानों ने सबने कहा कि हाँ सर हम चलेंगे। नई यूनिट है, 6 आ रहा है, राष्ट्रीय राइफल। मगर हौसला बहुत था लोग। जब कमांडर आगे चलता है ना, तो जवान अपने आप पैर ऊपर उठा लेते, फटाफट चलते। और कमांडर अगर पीछे रहता है तो फिर पैर नहीं उठा करते, पैर भारी हो जाते हैं। पैर भारी के 2 अर्थ, एक तो प्रेग्नेंट और दूसरा पैर भारी का मतलब थका हुआ है। गए और फिर कार्रवाई शुरू हो गई ऊपर पहुंच के। और जैसा बहुत सारे उसमें वीडियोस में और गूगल के ऊपर है, वो कार्रवाई करी और उन 14 लड़कियों को छुड़ाया। मैं उन माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि वो 1 साल तक, मैं जब अस्पताल में था तो वो मेरे पास आए। घर वालों से ये पूछा कि पैसे तो नहीं चाहिए, आपको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं। ये सिद्ध करता है कि आदमी जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करता। फौज का, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ये जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करता। तभी कहते हैं कि नास्ति में जाति, नास्ति में धर्मम, नास्ति में भाषा, नास्ति में राज्यम, एकोयम परिचय, एकेव व्यक्तितः, भारत मात्र सुता, भारत मात्र सुता। न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई धर्म है, न मेरी कोई भाषा है, न मेरा कोई राज्य है। मेरा परिचय मात्र एक ये है कि मैं भारत माता का बेटा हूं, मैं भारत का बेटा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। जो लोग जमीन से जुड़ना चाहते हैं उनको जरूर चाहिए फौज ज्वाइन करनी। फौज का मतलब ये नहीं है कि आर्मी, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, पूरी जिंदगी काम आती है। मैनेजमेंट सीखते हो आप, इनोवेशन सीखते हो, मेंटल एजिलिटी आती है, फिजिकल फिटनेस आती है। भाई अगर सिटीजन हो इस देश के तो देश के काम आओ ना, देश में बोझ क्यों बन के रहते हो? क्योंकि ये जमीन अगर इस पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाए तो जो फ्रीडम है ना आपकी, वो खत्म हो जाए। तभी आप बोल पाते हो, तभी आप कुछ कर पाते हो। जबकि फौज वाले देश को सुरक्षित रखते हैं, तभी इंडस्ट्री चलती है, तभी रोड बनती है, तभी पुल आते हैं, तभी ये विकास के कार्य होते हैं जब फौज है। अगर फौज नहीं है तो फिर मौज नहीं है। सही बात है सर। ये है। अब आप नेवी का उदाहरण देता हूं। मैं हेडक्वार्टर आईडीएस में था, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में, लेटर पोजीशन, मतलब एज ए ब्रिगेडियर एज कमांडर।
जितना कठिन काम शिप के ऊपर है, शोर के ऊपर है, प्रोडक्शन में है, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन है, वो आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक लेफ्टिनेंट कमांडर अरबों रुपए की एक रक्षा उपकरण की देखभाल करता, अरबों रुपए के रक्षा उपकरण आपको कौन दे देगा? नहीं तो 1 अरब रुपए का, 2 अरब रुपए के इक्विपमेंट को आपके हाथ में, ये केवल फौज में ही दिया जाता है। आप पे विश्वास करके, आपको ट्रेनिंग करके, और फिर आपको उसके अनुरूप बनाया जाता है ताकि आप उसको इस्तेमाल न केवल शांति काल में बल्कि युद्ध काल में भी करें। फिर ये अगर पानी में खराब हो जाए, समुद्र में खराब हो जाए, तो उसको ठीक कैसे करना है ये भी होता है। आजकल तो खैर 3D प्रिंटिंग। हाँ, जब मुझे गोली लगी थी तो मेरा पेट फट गया था। वो बाकी डिटेल तो आपको श्रोताओं को क्या बतानी, वो गूगल सर्च पे देख लेंगे। बार बार रिपीटेशन ठीक नहीं रहता। करेक्ट। और आंतें बाहर आनी शुरू हो गई थी, तो अपना पटका निकाल के, तो मेरी कमर उस समय टूट गई थी, तो मैंने अपना पटका निकाल के उसको पेट के ऊपर बांधा और कोहनियों के बल 4 राइफल लेके क्रॉल करके बाहर निकल आया था और अपने जवानों से मिला था। और तकरीबन सुबह के 3 बजे कुछ 3 मिलिटेंट और बाहर निकल के आए, तो मैंने उनको लोकल भाषा में बोला कि भाई तुम इधर आ जाओ, बाहर आर्मी है, तुम उधर मत जाओ। ऐसे करके मैं उनको ले आया अपने पास, उनको डिसआर्म करा और उनको बांध दिया। मेरा इवैक्यूएशन में फिर काफी टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग एरिया नहीं था और मेरा खून काफी निकल चुका था। तो मैंने अपने जवानों की मदद से वो खुद ही अपना ब्लड ट्रांसफ्यूशन करा, अपने आप लाइटर की रोशनी में इंट्रावेनस ड्रिप ली, सोडियम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं उसको, नॉर्मल सलाइन के करीबन 16 के लगभग पैक जो थे मैंने लिए थे। और उस तरह से मैं सर्वाइव हो गया। मेरे को मुझे डॉक्टर्स बताते थे कि काफी खून निकल चुका था, खाली मैं दिमाग से जिंदा था, बॉडी तो खत्म हो चुकी थी। और 1 साल तक तकरीबन अपने आप से स्ट्रगल करी मैंने। पहले तो आर्मी हॉस्पिटल RR में, वहां पर 2.5 लीटर पस हो गया था, तो उसको निकलवाया गया। फिर मेरे स्पाइन का एक और ऑपरेशन हुआ, फिर मुझको रिहेबिलिटेशन के लिए खड़की भेज दिया गया। और इस तरह से 1 साल के रिहेबिलिटेशन के बाद में मुझको ऐसा लगता था कि मुझको फौज से निकाल दिया जाएगा। उसको आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, PTSD। यस सर। दिमाग में काफी टेंशन हो जाती है उससे, मगर फिर अपने आप को ठीक करना आदमी के अंदर ही है। वो कहते हैं कि जब किसी अंधेरे गुफा में आपको रास्ता ना दिखे, तो बेहतर है कि आप एंड ऑफ टनल को वेट करने की जगह अपने आप खुद ही अपनी टॉर्च जला लो, अपनी टॉर्च को खुद जला के चल दो। तो वो लिया, फिर उसके बाद रीथिंक करा अस्पताल में बैठे बैठे कि अब अगर मुझको फौज में रिटेन करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ, इसको कहते हैं सिस्टमिक थिंकिंग। डॉक्टर पीटर सेंगे की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लिखी हुई किताब है, वो 1992 में हमने पढ़ी थी, सिस्टमिक थिंकिंग। तो फिर वो हमारे काम आई। अपने आप को रीओरिएंट करा, क्योंकि अब फिजिकल काम तो हो नहीं सकता था, तो मेंटल वर्क के ऊपर उसमें हमने ओरेकल करा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड सिमुलेशन करा, ऑपरेशन रिसर्च करा, और इस तरह के डिप्लोमा हासिल करे। और फिर हमारा 6 साल तक लेजर रिसर्च में कंट्रीब्यूशन रहा। वहां पर हम टेक्निकल मैनेजमेंट डिवीजन के अफसर इंचार्ज थे, प्रोजेक्ट मैनेज करते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लोगों को काम पसंद आ गया तो उन्होंने आगे कर दिया। तो ये काम हो गया उधर, क्योंकि पढ़ाई करी हुई थी तो वो वेस्ट हो जाती नहीं। इसी तरह से एक एयरबोर्न ऑपरेशन में एक पार्ट था जो फॉरेन सप्लायर ने सप्लाई नहीं करा था इंडिया को, हेवी ड्रॉप इक्विपमेंट का। तो
बड़ा टेंशन हो गया। दूसरा दिन हैवी ड्रॉप करना था और वो पार्ट नहीं था। ऊपर सबको बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये पार्ट अभी आएगा नहीं, इतना टाइम लगेगा कंट्री से आने में। तो फिर खुद ही जाके उस पार्ट को जो फाउंड्री होती है वहां पर बनवाया और रात को 2 बजे एयर ड्रॉप करा। नेक्स्ट डे उसका एयर ड्रॉप जो था, जो ऑपरेशनल एरिया था, उसके अंदर करवा दिया। वो सक्सेस हो गया। वहां हमारी रिकमेंडेशन गई थी इज फिट फॉर DRDO, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये ठीक है। वहां हमारी मैथमेटिक्स काम आई थी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करने की, ब्रेकिंग पॉइंट कैलकुलेट करने की, ये सब काम में है। लास्ट 1-2 क्वेश्चन सर, उसके बाद मैं फिर जी जी। बहुत रिसेंटली आपने मेजर विवेक के साथ स्क्यूबा डाइविंग किया था सर, वो एक्सपीरियंस स्कूबा डाइविंग वो ऐसा था, विवेक जैकब सर जो थे, उन्होंने मुझको फोन करा। वो मिलने आए थे, मेरे अस्पताल में बीमार था, मिलने आए थे। बोलने लगे सर स्कूबा डाइविंग करने जाना है। मैंने कहा यार चलेंगे। तो ताल कटोरा स्टेडियम में किरण रिजिजू साहब उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, भाईचंद भूटिया वगैरह साहब थे उनके। तो वहां जाके हमने कहा कि हमने तो स्कूबा डाइविंग कभी करी नहीं थी। तो उन्होंने लड़कों ने वहां पे हमको, जो उनके सपोर्ट स्टाफ था, उन्होंने हमको सिखाया बेचारों ने कि सर ये इसको ऐसे करते हैं। पकड़ के अंदर चले गए पानी में। तैरना जानते थे। तैरना तो बरसात में मथुरा, जहाँ हम बता रहे थे मंदिर, वहां पर एक पुल है, उसको कहते हैं नया पुल। अब वो टूट गया, नया बन रहा है। वहां से कूदते थे फ्लड्स में और करीबन 5 माइल स्विम करके और डेस्टिन पॉइंट पे निकलते थे। वहां डर नहीं लगता। डर तो बचपन में माँ ने खत्म कर दिया था। एक बार किसी बड़े लड़के से पिट के आ गए तो घर पे रोते हुए अपनी माँ को बताया कि मैं पिट के आ गया। हमने कहा थोड़ा वो सिंपैथी मिल जाएगी, कहीं नहीं मेरा बेटा कोई बात नहीं, ऐसे तो मारते रहते। हमारी माता जी दूसरे तरह की थी। उन्होंने कहा कि पिट के, वहां पत्थर नहीं था, क्या मार किया। तो साहब गए और उसके धाड़ से मार के आए और फिर घर में आके हमको प्रवेश मिला, नहीं तो नो एंट्री थी। हमारी माता जी बहुत दबंग थी इस मामले में और बड़ा अच्छा ट्रेनिंग दोनों भाइयों को उन्होंने दी हमको। गुड सर। सो जाने से पहले सर, आपका फाइनल मैसेज सर, यूथ जो देखेंगे ये वीडियो उनके लिए फाइनल एक मैसेज सर। हम तो काफी प्रेरित है सारे लोग सर, मैं तो फौजी, आप तो मेरे हीरो हो पहले से सर, बाकियों के लिए कुछ मैसेज अगर देना चाहेंगे सर। फाइनल मैसेज मैं ये चाहूंगा कि चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, इस देश को तोड़ने की कोशिश न करें। ये सनातन सभ्यता है, कई हजार सालों से ये सभ्यता मौजूद है। आपका धर्म बड़ा ही कुछ हो, मगर आपके पुरखे जो थे वो सनातन धर्म के थे। आपका कन्वर्शन हो गया होगा, चाहे आप सिख बन गए होंगे, ईसाई बन गए होंगे। कभी मौका मिले इस दर्शकों को तो परवीन मोहन के वीडियो देखें, जो कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताते। अगर ये देश चला गया, आपकी फ्रीडम चली जाएगी। ये देश है तो आपकी फ्रीडम है। तो इसलिए राष्ट्र के लिए काम करो। पैसा तो दूसरी चीज आती है। अगर सब लोग हम मिलकर अपने राष्ट्र के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें, देश की प्रगति के लिए काम करें, बल्कि ये विघटनकारी लोग जो कि ट्विटर पर, फेसबुक पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं और गलत बोलते हैं, उनको चाहिए कि अपने आप को सुधार ले। नहीं तो ऐसी चीजें ज्यादा देर चलती नहीं है। आज भारत का एक विशिष्ट स्थान है पूरे विश्व में, क्योंकि भारतीय जब बाहर जाते हैं तो वो एकता दिखाते हैं। वो भारतीय हैं, ना कि हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये ऐसी एक हांडी है, पतीला है, जिसमें कि सारे लोग आके आराम से समाते हैं, सेफ है। और सेफ क्यों है कि 3 सर्विसेज, जल, थल और नभ, सभी लोग आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने जीवन की आहुति देके। मैं उन आहुतियों में से हूं जो कि राष्ट्र धर्म के यज्ञ में पूरी जली नहीं। ऐसी अधजली आहुतियों को उठा के अलग रख दिया जाता है और उनका जल में प्रवाह होता है।
ताकि वो जहां जाए वहां नए बीज पैदा हो हवन के। ये मेरा फाइनल मैसेज है कि जिस तरह से मैंने देश की सेवा करी, आप भी देश की सेवा। So thank you, sir. Jai Hind, sir. Thank you, and grand salute, sir. A naval salute to you, sir.